Hello students, so let's move to the last part of the story. And there was a story that now in the last session I told you that Nazi party they went to look out the condition of the basement, and they just wanted to know whether it was suitable for a shelter or not. Okay, and when they went, the longest 3 minutes in Haberman history. Though when they went, and that 3 minutes were the longest minute. As in normal ways, 3 minutes is no time. All right, it passed so early, but when there was some tension and they worried that the minutes were look like years. Papa sat at the table. Rosa prayed in the corner, mouthing the words. Liesel was cooked. Liesel was cooked. Cooked means here she was in a very bad condition, physically hurt and physically and feeling disturbed. Okay, so everybody became so much tensionized, and they were praying for Max. And Liesel was so much tensionized, her knee, her chest, the muscle in her arm, because earlier he was physically also injured, and as well as he mentally disturbed also. I doubt any of them had the audacity to consider what they would do if the basement was appointed as a shelter. They had to survive the inspection first. Liesel was thinking कि हम लोग जो सोच रहे थे, हम लोग के दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट नहीं आ रहा था कि व्हाट हैपन इफ़ दे फाइंड द दैट बेसमेंट इज सुटेबल फॉर शेल्टर. तो सब लोग क्या सोच रहे थे? दे ऑल वर थिंकिंग अबाउट दैट जस्ट टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन फर्स्ट, कि इंस्पेक्शन बस किसी तरीके से हो जाए, और किसी के दिमाग में और कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था. They listened to the Nazi footstep in the basement. There was the sound of the measuring tape. Liesel couldn't ward off the thought of Max sitting beneath the staircase to the basement, huddled around his sketchbook, hugging to his chest. Okay? तो जब नाजी नीचे गए तो उन्होंने मेजरिंग टेप वगैरह जो रखे होंगे सामान स्टोर रूम में, उसकी आवाज़ सुनी. और लीजल को ये सारे थॉट्स आ रहे थे कि कैसे मैक्स अपने आप को बचा रहा होगा, उसने कैसे अपने आप को स्केच बुक और जो भी सामान पड़े होंगे, स्टेयर केस मतलब सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से में, कैसे उसने अपने आप को छुपा के रखा होगा. पापा स्टूड अनदर, ही वॉक टू द हॉल एंड कॉल्ड आउट एवरीथिंग वंट आउट देयर. तो फिर उसके फादर खड़े हुए विद अनदर आइडिया, एंड ही वॉज आस्किंग टू दैट पार्टी मैन दैट is that okay in basement. The answer ascending the step on top of Max Vandenberg, another minute perhaps. फिर वो लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, बस 1 मिनट और उसी सीढ़ी के नीचे कौन बैठा हुआ था? मैक्स वेंडनबर्ग. वुड यू लाइक सम कॉफ़ी टी? नो थैंक यू. So he offered, his father offered some coffee tea to that partyman, and he just said thank you. When Papa returned, he ordered Liesel to fetch a book and for Rosa to start cooking. And he just give them some hint, just you just now work as a normal way. He decided the last thing they should do was sit around looking worried. Well, come on, he said loudly, move it, Liesel. I don't care if your knee hurts, you have to finish the book like you said. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बैठे हुए हैं, एंड उसने अपने उनको बोला अपनी बेटी को कि चोट लग गई तो क्या हो गया, बट यू हैव टू फिनिश योर बुक. लीजल ट्राइड नॉट टू ब्रेक. यस पापा. मतलब लीजल ट्राइड नॉट टू ब्रेक का मतलब यह है कि ही वॉज सो मच टेंशनाइज, बट स्टिल ही रिप्लाइड. ठीक है. What are you waiting for? It took great effort to wink at her, she could tell. Okay, so मतलब तुम सोच क्या रही हो? To wink at her, wink means क्या होता है? किसी को इशारा करना. ठीक है, तो उस इशारे से उसको बोल रहा है कि मतलब इट टू ग्रेट एफर्ट टू विंक एट हर, मतलब वो लोग ऐसी सिचुएशन में है कि एक दूसरे को ठीक से इशारा भी नहीं कर पा रहे हैं. इन द कॉरिडोर शी नियरली कोलाइडेड विद द पार्टी मैन. इन ट्रबल विद पापा? हाँ, नेवर माइंड, आई एम द सेम विद माई ओन चिल्ड्रेन. तो इन द कॉरिडोर शी नियरली मतलब वो लगभग फिर से पार्टी मैन से कोलाइडेड होने वाली थी. वो जा रहे थे. कॉरिडोर मतलब समझते हैं ना, एक तरह का जो बाहर का हिस्सा होता है, लॉबी टाइप. अच्छा, तो तुम्हारे पापा तुमको परेशान कर रहे हैं. नेवर माइंड, आई एम सेम विथ माई ओन चिल्ड्रेन. मैं भी अपने बेटे के साथ यानी अपने बच्चों के साथ सेम बिहेव करता हूँ. They walked their separate ends. When Liesel made it to room, she closed the door and fell to her knees despite the added pain. जब वो मतलब सेपरेट वेज, मतलब लीजल अलग रूम की तरफ गई, अपने रूम की तरफ, और वो बाहर निकलने का रास्ता गए, और लीजल ने दरवाज़ा बंद किया, और इंस्पाइट
कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, स्टिल शी सेट डाउन ऑन हर नी, मतलब घुटनों के बल बैठी. शी लिसन फर्स्ट टू द जजमेंट एंड द बेसमेंट वॉज टू शैलो देन द गुड बायज, वन ऑफ विच वॉज सेंट डाउन द कॉरिडोर. गुड बाय मैनिकल फुटबॉल प्लेयर. ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये मतलब क्या है, ये जो बेसमेंट है वो टू शैलो, मतलब बहुत ही गहरा है. और फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय किया. शी रिमेंबर हर सेल्फ वाइडेंसन गुड बाय. वाइडेंसन इट्स अ जर्मन वर्ड, इसका मीन्स भी होता है शायद गुड बाय होता है से ऑफ वीडाजन. ठीक है, तो इसका मीन्स भी एक दूसरे को गुड बाय करना होता है इन देयर लैंग्वेज. According to Papa, Rosa melted next to the stove the moment the party was gone. ठीक है, फिर रोज़ा अपने काम पे लग गई जब पार्टी में चले गए. दे कलेक्टेड लीजल एंड मेड देयर वे टू द बेसमेंट, रिमूविंग द वेल प्लेस्ड शीट्स एंड पेंट कैन्स दैट वर हैडिंग मैक्स वेंडरबर्ग. ठीक है, फिर वो लोग जैसे वो गए, सब लोग किसकी तरफ गए, बेसमेंट की तरफ गए, और जहाँ पे मैक्स छुपा हुआ था सब कुछ सामान को उन्होंने हटाया, जो भी पेंट कैंस वगैरह जो भी पड़े हुए थे. मैक्स हेड beneath the step soaked in sweat and holding his rusty scissor for a knife, like a knife. ठीक है, तो पूरा जो मैक्स था वो किसके स्टेप्स यानी सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था, सोच इन वेट, पूरा पसीने से भीगा हुआ था, बिकॉज ही वॉज वेरी मच नर्वस और ऑल्सो स्कैर्ड. और उसके हाथ में एक क्या था, होल्डिंग हिज रस्टी सीज़र, मतलब उसके हाथ में एक सीज़र थी जिसने उसको किस तरीके से पकड़ा था, लाइक अ नाइफ. आई वुडेंट हैव यूज दैम, मैंने इसको यूज़ नहीं किया. ही क्वाइटली सेड ही हेल्ड द रस्टी आर्म्स फ्लैट अगेंस्ट हिज फोरहेड, मतलब उसने उन्हें सर पे हाथ रखा, माथे पे हाथ रखा. जब हम लोग बहुत ही टेंशन में होते हैं, डर जाते हैं, तो सर पे हाथ रखते हैं ना. आई एम सो सॉरी आई पुट यू थ्रू दैट. और उसने उनसे अपोलोजाइज किया फॉर जस्ट मेकिंग देम इन ट्रबल, क्यों आपको कठिनाई में डालने के लिए. आई एम सो सॉरी. रोज़ा टुक द सीजर, यू आर अलाइव, शी सेड, वी ऑल आर. और रोज़ा ने रिप्लाई किया, उसके सीजर ने उससे हंस बोला कि अगर आप ठीक हैं तो हम भी सब ठीक हैं. Alright, so this is all about the story, and I hope you understood. If you have any problem, we can discuss through the WhatsApp group or you can write in the comment box. Thank you.